Good morning, everyone, and a very warm welcome to all of you who have gathered here, and also to those of you who are watching this on our YouTube live stream. So today we have with us not one, but three films, and three films in three different languages of India from very diverse parts of India. So I'm really happy to have with all of us over here, the cast and crew from the film Lotus Blooms, which is a Maithili film, the cast and crew from the film Dharmaveer, which is a Marathi film, and also the cast and crew from the film Kurangu Pedal, which is a Tamil film. I shall begin today's IFFI Table Talks, that's our press conference, with the introduction of all those who are on the podium with us today. Starting from there, we have Mangesh Desai sir, who is the producer of Dharmaveer. Next to him, we have Shri Kamalakanan S, who is the director of Kurangu Pedal. Next to him, we have the actor from Kurangu Pedal, who is Kali Venkat, who also plays the role of Mari's father, right? Yes. Next to him, we have from Lotus Blooms, director Prateek Sharma. And with him, we have Mr. Akhilendra Mishra, who plays the role of Balwant Babu in the film Lotus Blooms. I welcome all of you, sir, and we're so glad to have you here. We will also be joined by Prasad Oak sir in a little while, so we wait for him to join us. We will start with the first film. The first film is Lotus Blooms, which for those of you who haven't seen the film, I will give you a small synopsis. The film Lotus Blooms is about faith in the fundamental goodness of Mother Nature and humanity. The lotus of conscience only blooms when it is connected with Mother Nature and with one's inner nature and soul. Can we please have the trailer of the film? Lights? बालक चाहिए 8-9 बरस के टका हम दे जो लागत Wonderful. We now move on to the next film, which is Dharmaveer. Dharmaveer is a film which is a biopic of the late Shiv Sena leader Anand Dighe, who devoted his life to the welfare of the people of Thane in Maharashtra. So can we please have the trailer of Dharmaveer? यतो धर्म ततो जया जिथे धर्म तिथे विजय माणूस जपणे इतका मोठा धर्म नाही सोसायटीमध्ये कुणीतरी हट्टा कट्टा मावळा उभा आहे मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी हिंदू असणं गुन्हा झालाय बहुसंख्य होत पण एक संत नाही तुम्ही एक मारला आम्ही 10 मारले तुम्ही 10 मारले आम्ही 100 मारू ठाण्यात दरबार भरतो म्हणे तुमचा प्रति न्यायालय म्हणजे न्यायालयात ठरलेले निकाल इकडे येऊन बदलतात तुझं कोर्ट ना ते पुरावे सादर करा असं सांगतात माझं कोर्ट ना ते पुरावे जिथे आहे तिथून शोधून कळावपाळीपासून उभी रांगेत बहिणींची किंमत असेल तर येईल बाहेर रक्ताचेच ना म्हणून आत न्यायला आलोय पण तू मला राखी बांधणार हिच्या नंतरच साहेबांच्या एका चिठ्ठीमुळे ज्यांची आयुष्य बदलली ना त्या गरीब कुटुंबांना जाऊन विचारा त्यांची देवाची व्याख्या काय आहे गरजवंताला धर्म जात काही नसते डोक्यावर टोपी घालून फिरणारा नाही डोक्यात जिहाद घेऊन जगणारा मुसलमान आपला शत्रू आहे This film is being This film is being screened in the Indian Panorama section, and I think it has received a lot of love across Maharashtra and beyond. The next film that we have is Kurangu Pedal.
Kurangu Pedal is the story of about a young boy's struggle to learn riding a cycle and the conflict that ensues between the boy and his father in the process. His cycling sessions are pepped with interesting events and run-ups with strangers. Can we please have the trailer? நீ படிச்சு பெரிய ஆளாகி ஏரோப்ளைன்ல கூட போ. உன்னை யார் வேண்டாங்க? ஒரு சைக்கிள் வாங்குறதுக்கு கூட படிச்சு பெரிய ஆகுமா? சைக்கிள் ஓட்டுறது ஒன்றும் டயர் வண்டி ஓட்டுற மாதிரி கிடையாதுடா. ஆன்லைன் சைக்கிள் எடுக்கிற அளவுக்கு உனக்கு எதுடா காசு? மயில் இன்னைக்கு கடைக்கு வந்து மத்தியான வரைக்கும் சைக்கிள் வாடகைக்கு வேணும்னு எடுத்துட்டு போயிருக்கிறா. இன்னும் தெரியும் வரல. So Kurangu Pedal is competing in the international competition category this year, and it is also competing for the ICFT UNESCO Gandhi Medal. Sir and I saw this film yesterday, and it took me back to my childhood days, definitely. So to begin the conversation, I'd like to ask each of you to say a few things about your film. We can start with Lotus Blooms. It's okay. लोटस ब्लूम जब वेरी इनिशियल स्टेज की मैं बात करता हूँ, एक थॉट अस्मिता माय पार्टनर एज वेल एज द राइटर ऑफ दिस फिल्म, हम लोगों के बीच में एक थॉट था कि जैसे हम हर किसी की ज़िंदगी में एक इमोशनल जर्नी होती है, तो वो इमोशनल जर्नी के साक्षी या तो हम होते हैं या फिर नेचर होती है, जिसे हम यूनिवर्स भी बोलते हैं। ये बहुत फिलॉसफिकल था, तो चैलेंज ये था कि इस फिलॉसफी को क्या हम फीचर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि सबसे पहली चीज़ थी कि फिल्म प्रीची नहीं होनी चाहिए और एंटरटेनमेंट का फ्लेवर उसमें होना चाहिए। सो दिस वाज द लाइन, और फिर उस लाइन से हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया कि माँ और बच्चे का इमोशन जो होता है वो इस तरह से छू जाता है, तो क्यों ना हम उस पर इसके अराउंड, इस फिलॉसफी के अराउंड एक स्टोरी क्रिएट करें। तो बेसिकली ये जो फिल्म है ये माँ और बच्चे की कहानी है, जिसमें बच्चा जब माँ से दूर हो जाता है तो माँ की जो जर्नी है, उस जर्नी को इस फिल्म के ज़रिए इस फिलॉसफी को पिरोते हुए कि जो मुश्किलें हैं, जो मुश्किलों की मिट्टी है, उसमें कैसे खुशियों का कमल खिल सकता है, इस चीज़ को हमने जोड़ा और एंटरटेनिंग फ्लेवर के साथ में इसको हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और चूँकि नेचर है, नेचर कभी बोलती नहीं है, नेचर सिंबल्स के ज़रिए हमको बहुत कुछ कहती है। तो फिल्म की अप्रोच भी यही है, बहुत सिमियोटिक्स को यूज़ किया गया है ताकि सिमियोटिकली कन्वे किया जा सके। तो फिल्म के अंदर बहुत कम डायलॉग्स हैं, सिमियोटिक्स ज़्यादा हैं, विजुअल्स हैं जो बहुत कुछ कहते हैं। और आई होप जिन्होंने देखी है, अब वो तो उनसे पता चलेगा उनको कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो बहुत जल्दी जहाँ पर आएगी तो देखेंगे। थैंक यू। सर कुछ ऐड करेंगे आप? मैं एक किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में, लोटस ब्लूम्स में। सबसे बड़ी बात है कि जब प्रतीक जी ने मुझे कहानी बताई कि इसमें भाषा नहीं बल्कि सिनेमा की भाषा है, और सिनेमा की भाषा के माध्यम से कहानी कही जा रही है, बल्कि कहानी जो है वो एक माँ और बेटे की ही है, लेकिन जो ताना बाना है और जो सामाजिक परिवेश है और जो देहातीपन है और बिहार के इंटीरियर में जाकर शूट करना,
बहुत कम संसाधनों में मेरा ख्याल है प्रतीक जी ने एक कमाल किया है। और मेरा जुड़ना इसलिए हुआ कि मुझे इतना कमाल लगा कि बहुत दिनों बाद मैं एक ऐसी फिल्म के साथ जुड़ने जा रहा हूँ जो कि सिनेमा है, फिल्म नहीं है। जीवन भी कमल की तरह ही है, सूर्योदय के साथ ही कमल खिलता है और सूर्यास्त के साथ ही कमल बंद हो जाता है। तो उसी तरह जीवन में जब खुशियां आती हैं, जीवन में जब रोशनी आते हैं, तो जीवन कैसे प्रफुल्लित होता है, और जब खुशियां चली जाती हैं, जीवन उदास होता है, तो कैसे जीवन ठहर जाती है। तो ये वो सिनेमा है, वो फिल्म है लोटस ब्लूम्स। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं इस फिल्म के माध्यम से आप सबके समक्ष अभी मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये फिल्म जो है माँ और बच्चे का है, स्मिता जी और अथ की, और ये यहीं बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है इनसे बात करना बेहद आवश्यक होगा। धन्यवाद। क्योंकि वो अस्मिता के बारे में दो बात मैं बोलूँ कि she has written this film, she has produced this film, and she has acted wonderfully in this film. And अगर वो साथ नहीं होती तो शायद ये फिल्म नहीं बन पाती, या हम लोग फिल्म नहीं बना पाते। इससे पहले भी जो फिल्म बनाई है, इट इज़ बिकॉज शी इज़ द पार्टनर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो मैं चाहूँगा कि ये इसके बिना अधूरा रहेगा। अस्मिता, प्लीज स्पीक समथिंग। नहीं, दो लाइन प्लीज। Ma'am, you can say a few words. We have with us Asmita Sharma, who's the writer, director, writer, producer, lyricist, and actress in the film. So if we can have her to say a few words about the film. Thank you so much. आप सब लोग हमें सुनने के लिए यहाँ आए। Yeah. मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। एक्चुअली ये ऊपर वाले की कृपा है कि इस तरीके की फ़िल्म बन पड़ी। कल मैंने खुद फिल्म को बनने के बाद पहली बार देखी, तो मुझे लगा कि हाँ, जैसा हम बनाना चाहते थे, जो हम बताना चाहते थे, जो हम दिखाना चाहते थे, वो दिख रही है। संकेतों में मेरा बहुत यकीन है। मैं पर्सनली भी बहुत मानती हूँ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को मैं डिफरेंट तरीके से लेती हूँ। तो इस फिल्म में भी ऐसा ही है कि आपकी प्लानिंग, इंसान की प्लानिंग कई बार बहुत सारी जगहों पे फेल हो जाती है, बट यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लान किया हुआ है वो आपको कब प्लेटर में ला के देगा आपको नहीं पता होता। तो इस जर्नी को लेके हम चले हैं कि बहुत सारी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, कहीं कहीं पे आप बहुत मायूस हो जाते हैं, आपको लगता है अब क्या होगा। लेकिन जब आप सरेंडर के भाव में आ जाते हैं, आपको लगता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में है, तो वो कैसे आपकी सारी समस्याओं का हल आपको दे देता है। तो फिल्म एक्चुअली वन लाइन यही है, जिस इमोशनल जर्नी की बात वो करते हैं, हम सबसे जुड़े हुए हैं उस इमोशन से। तो उस इमोशंस को अगर हमने पकड़ लिया तो हमने फिल्म बना ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पकड़ पाए हैं उस इमोशन को, और उसकी एक जर्नी हम खूबसूरती से रख पाए हैं। संकेतों के माध्यम से हमने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। जैसे फिल्म का जो पहला पार्ट है, जब बच्चा जो है वो नेचर का फल तोड़ता है और उसके रंग से ले जाके अपनी माँ के गाल पे लगाता है, तो वो फिल्म का पूरा एक प्रमाइस है जो एक बहुत बड़ी बात कहता है। तो इस तरीके के संकेतों का हमने इस्तेमाल करते हुए इस क्राफ्ट को बुनने की कोशिश की। एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें ये मौका दिया। ईफ़ी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस फिल्म को सेलेक्ट किया, हमें यहाँ आने का मौका दिया, और आप जैसे दर्शक दिए जो फिल्म को समझते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you, ma'am. When I read the synopsis, I was awed at the philosophical depth of it, and I'm really intrigued to see how you're able to connect it with the story. So I hope me and all of us here who haven't watched the film will get a chance to watch it. Moving on to the next film, we have Mangesh Desai sir from the film, the producer of the film Dharmaveer. Sir, we'd love for you to share some thoughts about your film. नमस्कार. धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे ही फिल्म बनवण्याचं स्वप्न माझं 2013 पासून होतं आणि ते 2022 साली पूर्ण झालं. आता मॅडमनी सांगितलं की युनिवर्स ठरवत असतं की तुमच्या ताटात काय ठेवायचं आहे. युनिवर्सने ठरवलं होतं की धर्मवीर सारखा सुपरहिट सिनेमा माझ्या पहिल्याच प्रोडक्शनमध्ये
माझ्या ताटात ठेवायचा आहे आणि तसं घडलं. थँक्स युनिवर्स. बऱ्याचदा असं होत असतं की आपल्या घरामध्ये आई बाबा मुलं सगळे असतात आणि वडील खूप काम करत असतात, प्रचंड काम करत असतात, पण आजपर्यंत वडिलांवर एकही गाणं तयार झालं नाही. जी काही गाणी तयार झाली असतील ती जी काही गाणी तयार झाली असतील ती फक्त आईच्या नात्यावर तयार झाली असतील. पण वडीलसुद्धा तेवढंच काम करत असतात, मरमर करत असतात. पण नेहमी वडिलांना एवढंच बोललं जातं की तू बाहेर टाईमपास करतोस, तू उशिरा येतोस, तू काय करतोयस, काहीच सांगत नाहीस. आमच्या महाराष्ट्राचे आम्ही 2 वडील मानतो मराठी माणसाचे. ते म्हणजे एक बाळासाहेब ठाकरे, हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, आणि दुसरे म्हणजे आमच्या ठाण्याचे धर्मवीर आनंद दिघे. हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सगळ्यांनाच माहिती आहेत, त्यांचं काम सगळ्यांना माहिती आहे. पण आनंद दिघेंचं काम जगापर्यंत किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेर कधीच पोचलं नव्हतं. फक्त त्यांनी काय गोष्टी चुकीच्या त्यांच्याकडनं घडल्या आहेत किंवा यांनी ह्या चुकीच्या केल्या आहेत एवढंच फक्त लोकांसमोर जात होतं. आणि मला नेहमी खटकत होतं की एवढा एक चांगला माणूस, एवढं उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व, ज्यांच्या दारात कोणी गेलं मदत मागायला तर तो रिकाम्या हाताने कोणी येऊ शकत नव्हता, गरिबांसाठी लढणारे, गरिबांच्या पाठीशी उभे राहणारं असं व्यक्तिमत्व, ज्यांनी शिवसेना सारखी संघटना खूप प्रचंड पद्धतीने वाढवली, अशा माणसाचं कार्य जगापुढे जातच नाही आहे. कुठलाही प्रॉब्लेम असो त्यांच्या दारात घेऊन गेलं, त्यांच्या मठीत घेऊन गेलं की तो प्रॉब्लेम काही क्षणात सॉल्व्ह व्हायचा, मग तो कुठलाही असो. अशा माणसाचं कार्य लोकांसमोर गेलं पाहिजे असा माझा सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश होता, जो मी 2013पासून हे स्वप्न बघत होतो आणि 2022 साली ते पूर्ण झालं. एक मनात भीती होती की पहिलंच प्रोडक्शन आहे, बिग बजेट आहे, हे लोकांसमोर कसं पोचेल किंवा लोकांना ॲप्रिशिएट करतील की नाही. पण मुळातच आपल्यातला माणूस, सामान्य माणूस, ज्याचं बँकेत खातंसुद्धा नव्हतं, असा माणूस जो लोकांसाठी लढला आहे, लाखो लोक त्यांनी जोडले आहेत, असा माणूस ॲप्रिशिएट नक्की महाराष्ट्राची पब्लिक, महाराष्ट्राच्या बाहेरची पब्लिक, जगातली पब्लिक करेल असं मला वाटत होतं. पण जेव्हा झी स्टुडिओज माझ्याबरोबर जोडलं गेलं फिल्म रिलीजसाठी, तेव्हा मात्र माझा आत्मविश्वास वाढला. आणि जेव्हा पहिल्या दिवसाचा कलेक्शनचा आकडा माझ्यासमोर आला, त्यांनी मला जेव्हा कळवला, तेव्हा मी म्हणलं चला आपण जिंकलो आहोत. आणि महाराष्ट्रातली सुपरडुपर हिट 2022ची फिल्म ठरली धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे. प्रवीण तरडे जे आमचे दिग्दर्शक आहेत, असा पॅशनेट डिरेक्टर मी आजपर्यंत कधी बघितलाच नाही. म्हणजे काम एके काम, त्याने जे उत्तम काम केलेलं आहे आणि त्याला जी साथ दिलेली आहे प्रसाद ओकनी, ही फारच वाखाणण्याजोगी आहे. प्रसाद ओक जर समजा आनंद दिघे नसले असते तर मला असं वाटतं की आनंद दिघे आम्हाला सापडले नसते, फिल्म पूर्ण झाली नसती. असा हा धर्मवीर ही फिल्म काल इकडे इफीमध्ये सगळ्यांनी बघितली. मला खूप लोक भेटले आणि मला अनेक लोकांनी असंही सांगितलं की पुन्हा रिलीज करा, कारण अनेक लोकांपर्यंत हा सिनेमा पोचला नाही. पण मराठी सिनेमासाठी काय, कुठल्या सिनेमासाठी हे शक्य नसतं की पुन्हा रिलीज करणं. पण नक्की झी5वर ही आहे फिल्म, झी5वर तुम्ही बघू शकता, सॅटेलाईटवर चालूच आहे फिल्म, यात काही वादच नाही. आणि आता मी लवकरच पार्ट 2ची सुद्धा घोषणा करेन. हा संपूर्ण सक्सेस जो आहे महाराष्ट्राची पब्लिक, महाराष्ट्राबाहेरची पब्लिक, जगातली पब्लिक, कारण इंटरनॅशनली हा सुपरडुपर हिट ठरलेला सिनेमा आहे. असंच तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य राहू दे एवढीच मनापासून इच्छा करतो. आणि प्रसाद ओक आता इथे आलेलेच आहेत, त्यामुळे ते पुढचं जे काय आहे त्यांनी ते कसं घडवलं, धर्मवीर त्यांना कसे वाटले हे ते बोलतीलच. प्रसाद. Sir, before we move forward, a humble request for our audiences, international and national audiences who are also watching our live stream. Could you briefly paraphrase in either in English or in Hindi, or I could do it if... माझा इंग्लिशचा मेजर प्रॉब्लेम आहे. Sir, Hindi will also do. Sir, Hindi will also do. मी इंग्लिशमध्ये काही सांगायला गेलो तर वेगळाच अर्थ निघेल. हिंदीमध्ये सांगू शकतो. धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे ये जो फिल्म है, ये 2013 में मैंने सपना देखा था फिल्म बनाने का, इसलिए कि बेसिकली आई एम फ्रॉम मराठवाड़ा रीजन, तो वहाँ के एक औरंगाबाद गांव से मैं हूँ. जब मैं करियर करने के लिए मुंबई आया, ठाणा में रहने लगा, तो मुझे एक छोटा सा ऐसा एक छोटी सी हट दिखती थी और वहाँ बहुत पब्लिक दिखती थी. इतनी पब्लिक दिखती थी कि मैं सोचता था कि क्या है यहाँ. और जैसे जैसे रात होती थी तो बहुत पब्लिक आती थी. यानी अगर दिन में वहाँ हज़ारों की संख्या में पब्लिक है तो रात में वहाँ कुछ ज़्यादा हज़ारों की संख्या में पब्लिक रहती थी. तो मुझे क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई कि ये क्या चीज़ है. और मेरे समझ में आया कि यहाँ आनंद दिघे साहब बैठते हैं
और यहाँ इनकी एक सभा चलती है रात में, जिस सभा में वो लोग आते हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। फिर कोई भी मदद हो, किसी की एडमिशन हो, किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉपर्टी का इशू हो, या किसी के बहन को छेड़ा गया हो, किसी के माँ को छेड़ा गया हो, किसी का बच्चा गुम हुआ हो, ये सब प्रॉब्लम वो एक झटके में सॉल्व कर देते थे। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई इस आदमी के बारे में जानने की। वैसे तो धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे में दिघे साहब का तो हम लोगों ने किरदार, दिघे साहब तो हमने दिखाए, लेकिन एक चीज़ मेरे ध्यान में ये आ रही थी कि महाराष्ट्र में जैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को माना जाता है, वैसे ही ये आदमी भी वैसा ही है, लेकिन आज तक इसके बारे में की जो प्रतिमा है वो पॉजिटिवली समाज तक नहीं पहुंची है। देखिए, कुछ काम करते वक्त थोड़ा बहुत गलती तो करनी ही पड़ती है। वो गलती करने अगर वो गलती नहीं हुई या वो गलती नहीं की तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा काम नहीं हो सकता। कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है अच्छे काम के लिए। अगर समझो ये कुछ चीज़ें उनके तरफ से होती होगी तो वो ही बाहर जा रही है। उस वक्त ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, पर फिर भी पेपर के माध्यम से वो बहुत लोगों तक निगेटिव चीज़ें जा रही थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, ये आदमी आज का रॉबिन हुड है, और वो रॉबिन हुड है जो किसी को लूटता नहीं है, समझाता है, समझा के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ऐसा आदमी जो आदमियों को जोड़ता है, और आजकल आदमी को आदमी से जोड़ने की जो बात है वो कम होते जा रही है। आजकल हम लोग भी ये देखते कि नहीं, चार आदमी अगर मिल गए तो उसमें से हम लोग चूज करना शुरू करते, किससे बात करें किससे ना करें, किसको टाले किसको ना टाले। ऐसे सिचुएशन में ये आदमी हजारों संख्या में लोगों को अपने साथ लाता है, बात करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इस आदमी को मुझे महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र के बाहर पहुंचाना है, और मेरा नसीब इतना अच्छा था या अच्छा है कि ये फिल्म पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरह से रिलीज़ हो गई, सुपर डुपर हिट हुई। 2022 साल की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म कौन सी रही, तो धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे ये फिल्म रही। इसके जो निर्देशक थे प्रवीण जी तरडे, आज नहीं आ पाए हो, उनकी कुछ फिल्म की शूट चल रही है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म शूट की है। कमाल के डायरेक्टर है वो। और प्रसाद जी ने जो किरदार निभाया है आनंद दिघे साहब का, तो मुझे ऐसा लगता है अगर प्रसाद जी नहीं होते तो ये आनंद दिघे साहब की फिल्म बनती या नहीं बनती मैं बोल नहीं सकता, या बनती भी तो दिघे साहब कितने ऑथेंटिकली दिख पाते इसकी भी मुझे शंका है। और जब जी स्टूडियोज़ मेरे साथ जुड़ गया तो मुझे 100% गारंटी हो गई कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, और वो हो गई। इन सब का श्रेय मैं महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे मदद की है, प्रेक्षकगण हैं, उन सबको देना चाहता हूँ। और प्रसाद ओक, प्रवीण तरडे, इन दोनों को भी देना चाहता हूँ। अब हमारे साथ जुड़े हैं प्रसाद ओक, तो वो धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे में धर्मवीर आनंद दिघे साहब का किरदार उन्होंने कैसा खड़ा किया वो बताएंगे। So if you could briefly talk to us about what you feel about the film. First of all, hello everyone, and sorry I just came late because of some personal reasons. I really apologize. What would you prefer, to talk in English, Hindi or Marathi? Yeah, cool. Thank you. तीनों मिक्स, ठीक आहे, चालेल, हरकत नाही. मुळात धर्मवीर हा सिनेमा मराठी आहे, त्यामुळे मराठीत सुरुवात करतो. आनंद दिघे हे असं व्यक्तिमत्व आहे ज्याला लाखो करोडो लोक देव मानतात. देव मानतात म्हणजे ॲक्च्युली देव मानतात. म्हणजे ॲक्च्युली ठाण्यात शूटिंग करत असताना कित्येक घरांमधल्या देवाऱ्यांमध्ये दिघे साहेबांचा फोटो मी स्वतः माझ्या डोळ्यांनी पाहिला आहे. सो ही वॉज लाईक अ गॉड टू कॉमन मॅन. So to portray a character like Anand Dighe was a bit difficult task for an actor, because अगर कहीं भी छोटी सी भी गलती होती है मुझसे उनका कैरेक्टर निभाने में, कुछ भी खामियां रह जाती है अगर मुझ में एज एन एक्टर उनका कैरेक्टर निभाते हुए, तो मुझे ज़िंदगी में कभी थाने में एंट्री नहीं मिलती. मैं टोल नाका क्रॉस ही नहीं कर पाता. तो मुझे बीइंग एन एक्टर आई हैव टू गो एवरीवेयर. ठाणे में मेरे प्लेज के शोज़ होते रहते, ठाणे में बहुत सारी शूटिंग होते रहते आजकल. तो अगर मुझे ठाणे में जाना है तो मुझे ये किरदार अच्छा निभाना है, बस यही दिमाग में था. अगर मुझे महाराष्ट्र में गर्दन ऊंची करके घूमना है तो ये कैरेक्टर अच्छी तरह से निभाना ही होगा. ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है.
or as an actor after having a career of 21 years and after completing 94 films, this is my 95th, 96th film, and after doing so many films, the first title role came in my life and that's a history. So अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. अभी मुझे अनुपम जी दिखाई दिए तो वो याद आया मुझे, कुछ भी हो सकता है. बस यू हैव टू कीप फेथ ऑन योर सेल्फ एंड ऑन गॉड. और धर्मवीर जैसी फिल्म बार बार बनती नहीं, बहुत कम बार बनती है, और मराठी में तो इतनी बिग बजट फिल्में बार बार नहीं बनती है. तो अगर बन रही है और फिर उसका लीड कैरेक्टर मुझे मिल रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी थी कि वो अच्छी तरह से ही निभाया जाए. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि आई हैवेंट मेट हिम इवन वंस. मैंने उनको देखा भी नहीं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उस वक्त मुंबई में आया ही नहीं था. बेसिकली आई एम फ्रॉम पुणे. तो मैं जब पुणे से मुंबई शिफ्ट हुआ तब तक आनंद दिघे जी जा चुके थे, गुजर चुके थे. तो मैंने उनको कभी देखा नहीं, उनको कभी मिला नहीं मैं. दैट वॉज अ बिग टास्क टू पोर्ट्रे हिज कैरेक्टर. बट देर आर सो मैनी पीपल इन ठाणे और महाराष्ट्र, इन इंडिया, जो उनके साथ रह चुके हैं, बहुत सा समय बिता चुके हैं. वो लोग रोज 100-200 की तादाद में मुझे आके मिलने लगे. जैसे उनको पता चला कि मैं आनंद जी का कैरेक्टर निभा रहा हूँ तो रोज लोग आते थे, उनके किस्से बताते थे, उनके फोटोग्राफ्स दिखाते थे. और मंगेश और हमारे दोस्त थे सचिन जोशी, इन लोगों के पास उनके तकरीबन they have thousands of photographs of Mr. Anand Dighe, and there are 10-12 videos on net of Mr. Anand Dighe. So इसके ज़रिए मैंने उनको ऑब्जर्व किया, वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से उठते बैठते हैं, किस तरह से बातें करते हैं. ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ लिटिल स्टैमरिंग. तो वो कब स्टैमर करते हैं, किस तरह से स्टैमर करते हैं, और अगर मैं वो फुल फिल्म में स्टैमरिंग रखूँ तो वो मजाकिया लगेगा, तो वैसा नहीं लगना चाहिए. तो इसलिए जब ही इज़ इन एंगर, सो उस टाइम वो हम लोगों ने यूज़ किया है. दैट वाज ऑल प्री प्लान्ड कि वो कैसे चलेंगे. तो मैंने एक एक में उस कैरेक्टर में भरता गया, और जैसे जैसे मैं भरता गया, मैं मंगेश को और हमारे डायरेक्टर प्रवीण जी और जिनका उल्लेख मैंने अभी किया, सचिन जोशी, इन सब लोगों को मैं दिखाता था रोज़ कि इस तरह से मैं चलूँगा, इस तरह से कंधे झुका कर चलूँगा, या फिर स्टैमरिंग इस तरह से करूँगा. और जैसे जैसे उनकी तरफ से अप्रूवल आता गया तो वैसे वैसे मैं कैरेक्टर डिज़ाइन करता चला गया, और and rest is the history. So you've done a wonderful job, and I'm sure we'll come back to this when we get questions from the audience. Now let's move on to the third film, that is Kurangu Pedal, and I'd like the director to speak a little bit about his film. Hello. Kurangu Pedal is a Tamil film. It portrays a child's interest in riding a bicycle, and the conflict arises when his father he don't know to ride a bicycle. The story happens in 1980s. This is based on a short story written by Rasi Alagappan. I read the story some 15 years back, and it kept on lingering in my mind as cycle being one of the most interesting and most intriguing thing in our childhood, especially learning a cycle. It gives us confidence, and that connected me more. Wherever I told the story about this making a film, everybody got into their childhood memories. It kept on lingering, and so it turned into a film in itself. We are just a tool. We made the film. The technical crew, the sound designer, the music director, the artist, everybody, they went to their childhood
that has reflected in the film, that makes the audience to feel their childhood one more time. The film especially connects the audience not only with the cycle, but the relationship between the father and the son. During our days past, we don't used to talk to our fathers openly. Whatever we want to talk, we communicate through our mother to tell what we need and whatever we communicate. So that distance, but the love between the father and son remains inexpressive, but there remains a love. That fact, the father who is very reluctant to ride a cycle, but he wants his son to know everything. The understanding, the change that the son makes to the father, that emotional connect, that plays a major role. Mr. Kali Venkat, who played the father role, and the children who played the roles, they played a very wonderful. They have converted the emotions to the audience. I think you like the film. Thank you, sir. And all the relations, I think, even the one between the kids is really beautifully portrayed. So, Kali Venkat sir, would you like to say something about your role? Good morning, everyone. I'm also struggling English. That's the problem. I want to say a lot because I don't know English. Because content, I have a lot of content. Connect this movie. It's like my English. Actually, I'm doing more than 100 films in Tamil only. I'm very good experience for this role because I'm lot of learning from them. Those who that child artist. They all are debut actors, this film. I think 93rd, 94th film. I am learning a lot from them. Very good experience, and I'm sincerely thanks to my director because this is the big stage. I think life very lengthy speech of English, this one. Speak 2-3 lines in Tamil. Please, I will tell you. I will speak. I will speak. Once upon a time, I'm doing this film. I told my friends, I'm doing one role of the best children's film. How to reduce your age and look? No. I'm not a children's father. It's like நான் வந்து அதை தமிழில் இப்போ சொல்கிறேன். எனக்கு நிறைய படம் நான் நடிச்சிருக்கேன். அதில் வந்து இந்த படம் ஸ்கிரிப்டை கேட்டதுலேருந்து வந்து எனக்கு தூக்கம் வரலைன்னா அப்படி ஒரு மாதிரி சோகமாக தூக்கம் வரல. இது என்னமோ என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. சம்திங் டூயிங் ஃபார் மீ. அப்படின்னா நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். என்னென்னா சைக்கிள் பழகும்போது, அதாவது when you லேர்னிங் ரைடிங் சைக்கிள், கீழே விழுந்து நமக்கு புண்ணாக இருக்கும், ஹூண்டிங். அந்த காயம் வந்து ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு இருக்கும், 30-40 இயர்ஸ். அதை நீங்கள் இதுலேருந்து அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது சேடாக ஃபீல் ஆகாது, ப்ரௌடாக ஒரு மாதிரி இமோஷனாக ஃபீல் ஆகும். ஸோ அது மாதிரி இந்த படம் எனக்கு. Sir, Kamalakan sir, could you brief, in 1 or 2 lines, just paraphrase, just in 2 lines, and then we can open to questions from the audience. What he said is, while we learn cycling, we'll fall down and we'll have wounds, but after few years, whenever we see that wound, we won't feel sad.
it will be a memorable thing. The film and the characters like that, he says. Wow. We also have with us the writer who, Shri Rasi Alagappan. Rasi Alagappan. I'm sorry, sir. So would you like to briefly say a few things about the film? அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டின டைரக்டருக்கு நான் வணக்கம். Basically, I am a writer and director. 2008, I making the film on Vanathupuchi children's film, take 2 state award. Now, I am a writer, this film. 25 years back, I written the story. The director choose the story and soul of the story and making the vision very fine. Yesterday I saw the film. Fantastic human touches. The art, no language, very good. The Kamalakannan is the one of the best director in the world. Thanks a lot. Thank you, sir. From what you say, I think with all 3 films, your destiny plays a big part in finally when they're made. So I think now that we've heard from everyone on the podium, we'd love to open for questions from the audience. मेरा प्रदीप शर्मा साहब आपसे एक क्वेश्चन है। एक एरा मैंने देखा है 51 से लेके 90 तक का, जिसमें सोशल फिल्में बहुत बनती थी। जेमिनी ने बनाई, एवियन ने बनाई, और उसके बाद में राष्ट्रीय ने उसको स्टार्ट किया। जो लोग इससे भटक गए वो सिनेमा वहाँ पर फेल हो गया। तो सोशल फिल्में जो बनना थी आपने बनाई है, पारिवारिक फिल्में मदर के और बच्चे के रिलेशन के ऊपर, क्या वो एरा वापस लौटेगा? क्योंकि आजकल फिल्में सिर्फ यंग जनरेशन के लिए बन रही है। फैमिली बहुत दूर होगी सिनेमा से। सिनेमा में आपको फैमिली कहीं दिखेगी नहीं। तो आपने जो फिल्म बनाई है, इस फिल्म के हिसाब से आप समझते हैं कि नया एरा वापस शुरू होना है सोशल फिल्मों का, पब्लिक की लाइकिंग का? सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने एक क्वेश्चन पूछा। हाँ, रीज़न इज़ जब हम लोगों ने सोचा कि हम फिल्म बनाएंगे, अस्मिता सीरियल्स में थी और मैं टेलीविज़न में ईपी था सोनी में। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी हमको फिल्में बनानी है। तो वी बोथ स्टार्टेड ऑफ। और सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही थी कि एज अ फिल्म मेकर हमारा क्या कर्तव्य है। कमर्शियल अपनी जगह है, लेकिन एक फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को कुछ देना। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कमर्शियल भी दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन जो आपका कर्तव्य है उसको आप सिर्फ कमर्शियल और एंटरटेनमेंट में नहीं रख सकते हो। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिनेमा से लोग उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं। जो किरदार हैं, जो एक्टर्स हैं, उनको लोग देखते हैं और वैसा करते हैं। बच्चे उन्हीं को देखकर बहुत सारी चीज़ें परस्यू करते हैं। मेरा बेटा बोलता है कि ये इसमें प्रोटीन है, उन्होंने बोला है, अमिताभ जी ने बोला है इसमें प्रोटीन है, मैं ये पीऊँगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर कि हम समाज को क्या दे रहे हैं। तो जितनी भी फिल्में हम लिख रहे हैं या हमने लिखी है, इससे पहले जो फिल्म बनाई थी उसमें भी हमने कोशिश की है कि सोसाइटी को कुछ दिया जाए और साथ में एंटरटेनमेंट रखा जाए और कमर्शियल्स का भी ध्यान में रखा जाए। तो मुझे नहीं पता कि एरा लौटेगा नहीं लौटेगा, लेकिन हमने एक रास्ता इख्तियार किया है, मैंने, अस्मिता ने और हमारे साथ जो टीम है, हम उस राह पर चलते रहेंगे और कोशिश रहेगी कि हम चलते रहें और सोसाइटी को अच्छी चीज़ देते रहें। और साथ में जो प्रोड्यूसर हमारे साथ रहेंगे उनका भी ध्यान में रखते हुए हम वो सारे एलिमेंट्स उसमें डालें। थैंक यू। आपसे ही कंटिन्यूस एक सवाल है जी, ये फिल्म आप रिलीज़ कब करोगे? ये अभी तो हमारा फेस्टिवल का दौर चल रहा है सर। इसी दौरान जब लास्ट लेग ऑफ फेस्टिवल में हम जाएंगे तो उसी बीच में चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम लोग, क्योंकि अभी हमको मिथिलांचल में भी जाना है, वहाँ पर भी वहाँ के लोगों के बीच में इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बहुत एनकरेजमेंट है इस लैंग्वेज को लेकर, उस तरह से अभी तक लोग गए नहीं हैं, या जा भी रहे हैं तो उस लेवल का टेक्निकलिटीज़ का इशू रहा है, फाइनेंस का हमेशा से इशू रहा है। क्योंकि जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने, सब लोगों ने क्वेश्चन किया, मैथिली का तो मार्केट ही नहीं है। सिनेमा का मार्केट आप
बिलीव कीजिए और वो चीज़ बनाई है, क्योंकि सिनेमा लैंग्वेज नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। सर ने जो बोला मुझे पूरी तरह समझ में आया। तो वो आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मार्केट ऑटोमेटिकली बनेगा। अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं, अपने सिनेमा में बिलीव करते हैं, तो मार्केट ऑटोमेटिकली बनेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, वो करेंगे और बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आएंगे। सुपर्ब सर। मैं आपको मंगेश जी, खास करके आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दूंगा, क्योंकि आप तीनों ने मिलके, प्रसाद जी, आप और प्रवीण जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, मतलब वो भारत देश के लीडर थे और दिख सकते थे, लेकिन वो इनविजिबल जो चीज़ें थी, आप तीनों ने मिलके उनको पब्लिक के सामने, जो आम जनता है उनको नहीं मालूम था दिगे साहब के लाइफ के बारे में, उनके जो कार्य उन्होंने किए, वो आप तीनों ने मिलके पब्लिक के सामने, आम जनता के सामने रखा। मुझे आपको एक सवाल पूछना ये है कि जल्दी से जल्दी आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से पार्ट 2 ऐसा लाइए कि और लोग आनंद दिगे साहब के साथ जुड़े और उनके विचारों को आत्मसात करें। और प्रसाद जी, आपने वो किरदार को बिल्कुल आत्मसात किया है, धन्यवाद। एंड एक आखिरी लाइन, बचपन जो है वो साइकिल के साथ, स्वीट लविंग मेमोरी, चाइल्डहुड विद साइकिल, राइडिंग ए साइकिल। So you did a good job. Congratulations to all of you. Thank you. Yes. नमस्कार एव्हरीवन. सर, मी पण महाराष्ट्रातली आहे. मी ऑल इंडिया रेडिओला ट्रान्समिशन एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करते. मैम, मुंबई can you आकाशवाणी. please speak in either Hindi or English, whatever you're comfortable with. ठीक है, मैं हिंदी में बात करूंगी. We reach a larger audience. मंगेश सर, तुमच्यासाठी एक प्रश्न आहे. धर्मवीर आम्ही बघितला. हिंदी. अरे sorry. क्या करेंगे, जय महाराष्ट्र तो आ ही जाएगा. Because this is an international festival. I know that. It's my mistake. मंगेश सर, आपके लिए एक सवाल है. धर्मवीर हमने जब देखी और प्रसाद जी का रोल जब हमने बड़े स्क्रीन पे देखा और उनका जो बैठने का स्टाइल था, वो देखकर हमारी पूरी फैमिली गई थी फिल्म के लिए. और मेरे ससुर जी का खास करके आनंद दिघे जी के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन रहा है. ठाणे में हमारा एक फैब्रिकेशन का कारखाना है. तब उस कारखाने में कुछ गुंडों ने मतलब वहाँ पर अटैक करने की कोशिश की थी. और वो बहुत पुरानी बात है, जब मेरे हस्बैंड भी बहुत छोटे थे. तो आनंद जी तब आए थे वहाँ पे. ऐसे बहुत से वहाँ लोग थे जिनका कारखाना वहाँ था, बहुत से बिजनेस वहाँ चलते हैं. Just a brief request, can you please come to the question, because Yes, there are many ma'am, yes, people ma'am. waiting to I ask come to the questions. I'm really sorry. We can continue this conversation later on, and I'm sure the Madam, can you biography is please about a speak really me? huge personality. प्लीज आप बोलने देंगे तो मैं बोलूँगी Yes, ना sure, जल्दी. तो सर, ये जो कुछ ऐसे मतलब अनुभव है, अगर आप दूसरे पार्ट में लाएंगे तो मुझे लगता है बहुत से ऐसे निकलेंगे. और जल्द से जल्द आप दूसरा पार्ट जल्दी बनाइए. और प्रसाद जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. और ऐसे ही अलग अलग रोल प्ले कीजिए. मंगेश जी, आपसे और ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ गई है. और प्रवीण जी को भी धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. I'm really sorry. I'm sure you want to share your experience, but just that there are many people waiting to ask questions. Thank you. सॉरी, पुन्हा मराठीतच. नमस्कार मंगेश सर, पहिल्यांदा अभिनंदन. प्रसाद सर, तुमचं पण. जेव्हा मराठी चित्रपट निघतो आणि राजकीय क्षेत्रातनं चित्रपट असतो, राजकीय क्षेत्रावरती असतो, त्यावेळी राडा हा असतोच. ज्यावेळी धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे बनत होता, त्यावेळी राडा, त्याच्यानंतर राजकीय राडा झाला, त्याच्यावर काय सांगाल? So, Yes. Yeah, congratulations. Of course, it's a wonderful film. The other two, I'm sorry, I've not seen yet, but I would like to see. And I never even read synopsis because I like the suspense and I don't want to know anything about the film before I see it. But a question for you is, whenever you do a film, a biopic, either you are showing
the person is larger than life. You are showing him in a good light, but in your film, some violent or controversial points are there, which you are naming each person. You are not even changing the names, and now they are again big time in politics. So how did you handle that? जिन्होंने ये फिल्म देखी है उसमें एक सीन है कि भिवंडी नाम का एक एरिया है, तो उस एरिया में दंगल शुरू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम राइट शुरू हो जाता है, और उस वक्त दिगे साहब को एक कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और वहाँ अपने जो एक कार्यकर्ता है उनके घर पे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। तो उस वक्त फिल्म में जो सीन है वो सीन ऐसा दिखाया गया है कि वो खुद अकेले वहाँ जाते हैं और दोनों जो गुट हैं वो दोनों गुटों को वो एक मोमेंट में स्टॉप कर देते हैं और बोलते हैं दंगल ख़त्म, इसके बाद में कोई एक दूसरे को मारेगा नहीं। ये फिल्म में सीन दिखाया गया है, ये 101% रियल सीन है। ये ऐसी ही सिचुएशन थी, वहाँ राइट्स शुरू हुए थे, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, किसी के हाथ में ये कंट्रोल नहीं हो रहा था। उस वक्त आनंदगे साहब अकेले वहाँ गए और उन्होंने दोनों गुटों को बंद कर दिया, चलो आप उधर जाओ, आप उधर जाओ। ये ताकत उनमें थी, उनके ही कार्यकर्ता बहुत सारे हैं। अब एक ऐसा, ये तो योगायोग बोलते हैं इसको, एक कोइंसिडेंस है कि ये फिल्म रिलीज़ हो गई और महाराष्ट्र में सत्तांतर हो गया। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये इस फिल्म को इसीलिए लाया गया कि सत्तांतर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फिल्म 2022 में 22 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के वजह से वो 13 मई को रिलीज़ हो गई, पोस्टपोन करनी पड़ी। अब उसके बाद क्या हुआ ये सब महाराष्ट्र जानता है, इंडिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है, लेकिन ये सब कोइंसिडेंस है। उसमें एक किरदार जो किया है वो, यानी जिनका एक किरदार क्षितिज दाते ने निभाया, वो है आज के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, जो उनके एकदम कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने भी जो रियल में किया है वही उसमें दिखाया है। अब ये सबसे मेन चीज़ ऐसी है, मैडम ने पूछा कि ये आपने हैंडल कैसा किया। ये अभी तक मैं हैंडल ही कर रहा हूँ। मैं किस प्रेशर में रहता हूँ ये मुझे ही मालूम है, लेकिन वो प्रेशर मेरे चेहरे पे नहीं दिखाता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्टर। Thank you, sir. I'd like to jump in here with a question for the Kurangu Pedal team. I saw the film yesterday and I was wondering that the child actors are all young children from this generation, while the film is based, I think, in the 1980s. So how did you make those children understand the lives of kids in the 80s? Because I think the pace of things and the way life was lived, and I think that is also an essence of your film, is very, very different. First we got, actually we, we theft their mobile phones. They went back at least 15 years. Then we cut off all the relationship to their world. Sorry for disturbing the children, their childhood, but we settled in a space, Kalyan Mandapam, and we kept on talking about our past, with our friends. These children, they are well versed in martial arts, so they have a lot of concentration. Whatever that happens around, we poured in our thoughts indirectly into them. They kept on asking questions that how could you live without a mobile phone? How could you live without a TV? How can these questions they kept on lingering to their mind.
in few days, at least around 3 to 4 days, they started liking the life without the cell phones, without the modern digital equipments. Rest it happened all. Wonderful, sir. Next question, please. मेरा सवाल मिश्रा जी से है। मिश्रा जी, आपने बहुत सारे हिंदी सिनेमा में निगेटिव सामाजिक रोल किया है और आपका आवाज़ भी बहुत भारदस्त भारी आवाज़ है। तो लोटस ब्लूम का जो मूवी का आपने जो कैरेक्टर रोल एक्सेप्ट किया, उसके पीछे क्या वजह है? इसलिए कि बहुत कम बोलना था उसमें। उसमें भाषा शब्दों का नहीं है, सिनेमा की भाषा है। सिनेमा की भाषा से कहानी कैसे बताई जा सकती है, ये है लोटस ब्लूम्स। बोल के कमल नहीं खिलता, कमल खिल जाया करता है। तो यही है लोटस ब्लूम्स। तो जीवन भी लोटस की तरह है, कमल की तरह है, जैसा कि मैंने बताया पहले। तो वो वही फिल्म है जब इन्होंने बताई। और चूंकि फिल्म हमारे यहाँ का है, हमारे प्रदेश की 5 भाषाएं हैं, उसमें से एक मैथिली भाषा है और सीता मैया की भाषा है। तो इसलिए हमने ये फिल्म मुझे करनी थी, क्योंकि इस भाषा को आगे बढ़ाया जाए और अच्छी फिल्में बने। आजकल क्षेत्रीय फिल्मों पे उतना ध्यान नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाता, जबकि क्षेत्रीय सिनेमा ही एक्सेल कर रही है। भारतवर्ष में जो पहला अवार्ड आया 1936 में, पहला वेनिस फिल्म फेस्टिवल जब शुरू हुआ, तो बेस्ट फीचर फिल्म मराठी फिल्म संत तुकाराम। यस यस 1946, 10 साल के बाद बेस्ट फिल्म नीचा नगर, चेतन आनंद की फिल्म। 1956 मदर इंडिया नॉमिनेटेड फॉरेन फिल्म कैटेगरी इन ऑस्कर। तो ये हमारी विरासत है। पहली फिल्म हमारी रीजनल ही थी और हम रीजनल को ही स्पेस नहीं देते। आज हर एक फिल्म का अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, सेपरेट। लेकिन रीजनल फिल्म में 3 लोगों को बैठा दिया, 3 फिल्मों को एक साथ। नहीं, पूरा स्पेस दीजिए आप, बाकी एक्टर्स को भी बैठाइए, उनके साथ बात कीजिए कि रीजनल फिल्म है। सिनेमा हमारे यहां तो जो मेन स्ट्रीम की सिनेमा है, जिससे भारत को दुनिया में जाना जाता है, वो हिंदी सिनेमा। उसमें से भारत ही गायब है। वो फिल्में जब बाहर जाती हैं तो बाहर के लोग फिल्म देखते हैं, ओह दिस इज इंडियन फिल्म, बट वेयर इज इंडिया इन दिस फिल्म? वो कहते हैं। अभी 2018 में माजिद मजीदी आए थे, ईरानी डायरेक्टर, यहां फिल्म भी बनाई उन्होंने ओपनली, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का कोट कर रहा हूं, जो छापा था उस इंटरव्यू को। ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतवर्ष में अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छी कहानियां हैं, सारी चीजें, अच्छे एक्टर्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन भारतवर्ष की फिल्मों में आजकल भारत ही नहीं है। ये 18 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था माजिद मजीदी का, वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूं आपको। तो ये सारी चीजें हैं। और भारत आज दिख कहां रहा है? भारत आज क्षेत्रीय फिल्मों में ही दिख रहा है। आज एक अलग हुड़दंग मचा हुआ है कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं, दक्षिण भारत की फिल्में चल रही हैं। क्यों? भारत दिख रहा है, लोग भारत को देखना चाहते हैं, लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं। नई पीढ़ी इतनी अवेयर हो चुकी है कि वो भारत को जानना चाहती है, इस मिट्टी के कण कण को जानना चाहती है। अब ज्यादा नहीं बरगला सकते। और क्षेत्रीय फिल्मों में वो चीजें मिल रही हैं। आज मराठी फिल्म इतनी फ्लरिश कर रही है, क्यों? पंजाबी फिल्म क्यों? और मलयालम और तमिल और तेलुगु और कन्नड़ फिल्में तो फ्लरिश कर ही रही है पहले से। आज आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां की फिल्में देखिए। लास्ट ईयर कौन सी फिल्म थी नॉर्थ ईस्ट की जो कि ओपनिंग फिल्म थी इस फेस्टिवल की, इफी की? मतलब मुश्किल से 1 लाख लोग भी वो भाषा नहीं बोलते, मैथिली या कुछ करके उस भाषा का नाम है, एसएमएस फिल्म थी। और वो ओपनिंग फिल्म थी, पैनोरमा ने सेलेक्ट किया था इस इफी का ओपनिंग फिल्म, क्योंकि फिल्म उस लेवल की थी।
सिनेमा की अपनी भाषा है। जो लोग सिनेमा करना चाहते हो, सिनेमा पैसों से नहीं बनती। लोटस ब्लूम्स जो प्रतीक शर्मा ने बनाई है वो बहुत ही कम संसाधनों में, आप सुनिएगा तो हिल जाइएगा। लेकिन आप फिल्म देखिए, आप फिल्म में जो भाव है, जो रस है, आपको एक तरफ श्रृंगार रस भी मिलेगा तो एक तरफ करुण रस भी मिलेगा, भावों से ओतप्रोत है। यही तो सिनेमा है। और सिनेमा की भाषा से एक फिल्म मेकर कहानी को बता रहा है, कहानी को नैरेट कर रहा है। और ईफी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा एलाबरेशन हुआ है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग हुई है, वर्ल्ड के बहुत अच्छे अच्छे माइंड्स को, बच्चों को एडॉप्ट कर रहा है, उनको इंकरेज करने के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो पहली बार ईफी में आया हूँ, मैं इसके पहले आया नहीं हूँ कभी, क्योंकि मुझे भीड़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सिर्फ जब नाटक करता हूँ, लोग देखते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, वहीं भीड़ मुझे अच्छी लगती है। तो जी जी, क्योंकि आपकी आवाज़, क्योंकि बच्चे ने पूछा आपसे जी, मैं 1969 में गोवा आया था फर्स्ट टाइम। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, 7 हिंदुस्तानी की। तो ख्वाजा हमारे पास उनसे बोलते थे कि भैया तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, तो क्या करोगे तुम फिल्म में बाद में। आज मेरा अमिताभ बच्चन कहाँ पर है बताइए। तो आपको मैं कांग्रेस करना चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जाएंगे। अमिताभ बच्चन तो बहुत आगे हैं ही, महान आएंगे। आप भी कहीं ना कहीं आपकी भाषा के हिसाब से बहुत आगे जाएंगे। कांग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद, बहुत। Sir, we agree with your sentiment 100%, and I think IFFI is trying to provide a platform to regional cinema. I'd just like to clarify that it's not just regional cinema. Even in the international section, we're having multiple films only because there are so many films in our sections, and we want to provide all of them a platform to speak to the media. That's the only reason. If you should give Kshatriya cinema as priority. We'll definitely take your suggestion in mind, sir. Okay, next question, please. सर माझा एक शेवटचा छोटासा प्रश्न आहे मंगेश सरांसाठी. Please hold on. We are not regional cinema. That too, sir. Tamil We'll- cinema, Marathi cinema, Agreed, Hindi sir. cinema. Don't Agreed, sir. mention us regional cinema. Nothing Agreed, is sir, my regional. mistake. We are Indians. We represent Tamil. Agreed, sir. Different cinema in different languages would be a better way to put it. Yes. Hello, congratulations for making such wonderful films. My question is for Mr. Pratik and Mr. Kamalakannan. When from last few years there are movies like which are big budget movies like 300, which are made after spending 300 crores, 400 crores and all. So what made you think that your subjects like a relation between a mother and a son and a father and a son, then what those sort of movies will click and people will come and उन movies को सराहेंगे? Why do you feel that? See, cinema is not about commercial at all. ठीक है, बेसिकली जब सिनेमा स्टार्ट होता है तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट या जिसको हम बोलते हैं नींव, वो होता है इमोशंस। इमोशंस 100 करोड़ लगाकर इमोशन जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इमोशन है, ऑडियंस उस इमोशन से कनेक्ट हो रही है, तो वो जीते। मेरे पास में कितना पैसा है, इनके पास में कितना पैसा है, उससे फिल्म बहुत अच्छी बनी है, तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, 100 करोड़ वाले ही बैठे होते, क्योंकि उसी से सब कनेक्ट होते। तो इट्स नॉट दैट। तो हम लोग इसी में बिलीव करते हैं कि एक अच्छी चीज़ लिखी जाए, एक ऐसी चीज़ को विजुलाइज किया जाए जो ऑडियंस से रिलेट करे। कल जब हम फिल्म जब हमारी ख़त्म हुई तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने आके सजेशन देना शुरू किया, सर इसमें ना एंडिंग ऐसी होनी चाहिए, ये भी हो सकता था, वो भी हो। तो वो हमारी जीत थी कि वो इतना इन्वॉल्व हो गए स्क्रीन प्ले के साथ कि उनके अपने अपने स्क्रीन प्ले शुरू हो गए। तो वो हम दैट वाज आवर विन। वो नहीं है कि जैसा सर ने बोला कि बहुत कम संसाधनों में बनाया तो क्या हुआ, लेकिन जो ऑडियंस बैठी है वो उससे रिलेट कर रही है, वो उसके साथ जी रही है और अपना अपना एंडिंग सोच रही है। तो वो हम जब वापस होटल लौटे तो हम बहुत कुछ ऐसा लेके लौटे जो, क्योंकि दिस वाज वेरी फर्स्ट स्क्रीनिंग, अभी तक स्क्रीनिंग हुई नहीं थी, तो पहला ऑडियंस रिएक्शन हमको कल ही मिला।
तो यही जीत है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ही होगा तो ही चीज़ होगी। सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? Actually, the what he said, what I understood, the emotion is the main thing. What the emotion needs brings the canvas. In which level canvas we want to present the film, that depends on the level of emotion. So, if the story requires a little wider space, we tend to work towards that. That doesn't mean that we work only on small budget films. We work according to the need of the story and the emotion. If it needs 100 crore, we'll move towards that. That's it. मंगेश सर, माझा प्रश्न तुमच्यासाठी होता. आत्ताच तुम्ही बोलला की आनंद दिघे यांच्या भूमिकेला प्रसाद ओक यांच्याशिवाय कोणीच न्याय देऊ शकला नसता. प्रसाद ओक यांना निवडण्यामागे काही विशेष कारण आहे का? Just to paraphrase, sir, before you begin, his question was, is there any specific reason why you chose Prasad Ok sir to portray the titular character of Anand Dighe? मी ॲक्टर आहे. सगळ्यात पहिले चॉईस होता मी स्वतःच. Sir, I'm sorry to interrupt. Could you please? मैं एक्टर हूँ, तो सबसे पहले चॉइस मेरे लिए मैं ही था, और मैंने डिसाइड किया था कि आनंद दिघे साहब का किरदार मैं खुद निभाऊंगा. बहुत ट्राई किया, प्रोस्थेटिक करके देखा, ऑडिशन हो चुकी थी, सब हुआ, लेकिन ना ऐसा हो लग रहा था मुझे कि नहीं, मैं कुछ खो जाऊंगा इसमें से. जो मुझे बनानी है फिल्म, दिघे साहब को जिस तरीके से मुझे पब्लिक के सामने लाना है, उसमें अगर थोड़ा बहुत भी एरर हो जाएगा, एरर निकलेगा, तो ये फिल्म का कुछ सही नहीं. और ठाणा में रहता हूँ तो बाद में मैं ठाणा में भी रह नहीं पाऊँगा. उसके बाद मेरा सर्च शुरू हुआ. प्रसाद मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमने बहुत सारे प्लेज किए, साथ में काम किया है. प्रसाद क्या एक्टर है मुझे सब पता था, लेकिन कुछ सालों से मुझे ऐसा दिख रहा था कि प्रसाद जिस तरीके से पब्लिक के सामने आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा है. और ये सब हमारा सर्च शुरू हुआ था. बहुत सारे लोगों से बात हो चुकी थी, बहुत सारे एक्टर्स का स्क्रीन टेस्ट भी हुआ था, लेकिन मन नहीं भर रहा था, ना तो मेरा ना प्रवीण तरड़े का. आखिर में प्रवीण तरड़े जी ने मुझे बोला, एक काम कर दे मंगेश, तू एक्टिंग में तो मार लेगा, थोड़ा बहुत जो एरर रहेगा वो देख लेंगे. मैं भी एक्टर हूँ ना, तो मुँह तो हो ही जाता है. तो बोला चलो डन. लेकिन उतने में ऐसा हुआ कि मेरा जो कास्टिंग डायरेक्टर था, उसने मुझे प्रसाद की एक फ़ोटो भेजी, और उसमें जैसे दिघे साहब को दाढ़ी वगैरह थी, उसका एक स्केच बनाया था प्रसाद का. मैंने वो देखा, साइड एंगल से था, तो मुझे ऐसा लगा यार ये दिख सकते हैं. फिर प्रसाद के मैंने क्लोजअप्स मंगवाए, उसके ऊपर कुछ तैयारी हो गई, और मुझे ऐसे लगने लगा ये प्रसाद ही दिखेगा. एक्टिंग के बारे में तो कुछ सवाल ही नहीं था, सिर्फ ऐसा दिखना बहुत ज़रूरी था. और सबसे मेन चीज़ ऐसी थी कि वो कैरिकेचर नहीं, आनंद दिघे साहब का कैरिकेचर नहीं, कैरेक्टर कैसा पकड़ेगा, उसके लिए मुझे एक तो उसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस था. जिस दिन प्रसाद का लुक टेस्ट हुआ, उस दिन 100% ये तय हो चुका हमारा कि प्रसाद ही रहेगा. हुआ ऐसा, दिस इज इंसिडेंस. मुझे ऐसा लगता है ये सब जम के आता है, और जब कुछ चीज़ें जम के आती है तो वो जम जाती है, वो सुपरहिट हो जाती है. प्रसाद गेटअप करके ऐसा बाहर आया मेकअप रूम में से, और आनंद दिघे साहब को जिन्होंने देखा था, उनके साथ जो रह चुके थे, वो एक कार्यकर्ता उसके लिए टिफ़िन लेके जा रहे थे. उसका उस वक्त डाइट चल रहा था, और जैसे उन्होंने देखा प्रसाद को उस गेटअप में, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया. उनके हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, वो रोने लगे, उसके पैर गिरने लगे. प्रसाद ने मुझे कॉल किया, ऊपर आ, कुछ गड़बड़ चल रही है. मैं ऊपर गया तो ये जो बंदा था, उसका नाम शशि, वो ऐसा खड़ा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि आनंद दिघे साहब मेरे सामने खड़े. बोले क्या हुआ शशि? तो ये दिघे साहब है, ये दिघे साहब है, ये दिघे साहब है, ये दिघे साहब है, ऐसा शुरू किया उसने.
बस उस दिन मैंने तय कर लिया अपने को दिगे साहब मिल गए और वो मिल गए. Are there any more questions? Okay, I think yes, sir. एक अच्छी बात ये है कि आज ये 3 फिल्म के सब मेकर्स है साथ में बैठे. आई एम सो हैप्पी कि आज 2 बहुत ही दिग्गज एक्टर ये Yes. ये Sir, it's a fortune to have them here. खास करके थिएटर नहीं सर वो बहुत ही सीनियर बहुत बड़े. अब कंपेयर मत कीजिए, मैं बहुत छोटा हूँ. थिएटर की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट थिएटर. अमेजिंग मिश्रा जी और गॉड ब्लेस यू. सर मैं इनके साथ एक लाइन में बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है. बाकी मुझे नमस्कार. And I think, okay, can we have the last question Yeah, and then we will end for today because we have another press conference after this. धर्मवीर चित्रपटाबद्दल बोलायचं होतं की खूप चांगला चित्रपट आहे. फक्त एक विचारायचं होतं. आय वॉन्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन लाईक आनंद दिघे सरांना तुम्ही लार्जर दॅन लाईफ म्हणजे खूप चांगला पोर्ट्रे केला आहे. तर बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे मध्ये म्हणजे मला दोघांबद्दल तेवढं माहीत नाही. म्हणजे आतापर्यंत फक्त बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल माहीत होतं आणि काल बघितल्यानंतर मला खूपच म्हणजे आनंद दिघे साहेबांबद्दल खूपच आदर कौतुक आणि चित्रपट एवढा चांगला आहे की खूप इमोशन्सने भरलेला आहे. Sir, please come to your question. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू नो अ कम्पॅरिझन अबाउट बोथ द पॉलिटिकल लीडर्स. यू कुड जस्ट. नाही, दोघांमध्ये कम्पॅरिझन होऊ शकत नाही. दोन्ही देव आहेत. मग शंकर काय आणि गणपती काय, दोन्ही देव आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात कम्पॅरिझन होऊ शकत नाही. दोन्ही ग्रेट माणसं आहेत. So couldn't have been put better. Yeah, hello, good morning everyone. I'm here. Yeah, hi. Yes, so hearty welcome to all of you. You spoke about, sir, you spoke about the role of semiotics, and you said that you acted in the film because you had to use less language, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ा, right? So my question is common to all the all of you here, that we also talk about the distinction between regional cinema, Kshetriya cinema. You spoke very passionately about Kshetriya cinema, and here your fellow colleague pointed out that we shouldn't even use the word regional cinema, right? So I want to ask you, what is the language of cinema, and what should be the language of cinema? Does it have any language? नौ रस, जो नौ रस है, जो श्रृंगार है, जो करुण है, जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो वीर है, जो भय है, जो विभत्स है, जो भयानक है, यही सारे रस जो जीवन के हैं, जो जीवन में आप जीते हैं, वही सिनेमा है. जीवन का विस्तार ही सिनेमा है. लार्जर देन लाइफ क्यों कहते हैं सिनेमा को? हमारे परंपराओं का विस्तार सिनेमा है, भाषा का विस्तार सिनेमा है, संस्कृति का विस्तार सिनेमा है, इस सृष्टि का प्रदर्शन सिनेमा है. सिनेमा को समझना पड़ेगा. सिनेमा आध्यात्मिक दृष्टि है. सिनेमा आध्यात्मिक, इट इज स्पिरिचुअल विजन. यह आसान नहीं है. उस गहराई में जाना पड़ेगा. प्रश्न ये है और समस्या ये है कि हम पत्तों में पानी दे रहे हैं, हम जड़ों में पानी नहीं दे रहे हैं. मैंने जितनी बातें कही उसका एक लाइन का जिस्ट यही है कि हम पत्तों में पानी दे रहे हैं, जड़ों में नहीं दे रहे हैं, और चाहते हैं कि पेड़ हरा भरा रहे. धन्यवाद. I'm sorry, just one follow-up, just quick follow-up. Just one question and quick then follow-up question. Yeah, so sir, it's very beautiful what you have said. You are saying that the language of cinema is Navaras and it is spiritual. So I'm reminded of the statement made by, if I am not mistaken, I think it is Karthik Aaryan who said at the opening ceremony of this edition of the film festival that for him cinema is entertainment, entertainment, entertainment. So putting the two statements together, what I would like to ask you is, so does it mean that entertainment is fundamentally spiritual and spirituality is all about entertainment, or is there a distinction between the two? I mean, is there a contradiction between the two You statements? must understand what is entertainment. हर रस में entertainment है. जब आप फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो अगर
कैरेक्टर रो भी रहा है, उसके परफॉर्मेंस को देख के आपका हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है और आप तालियां बजाते हैं। वो रो रहा होता है, उस समय करुण रस ओतप्रोत रहता है मंच पे, पर्दे पे, चरित्र में, तब भी आप तालियां बजाते हैं, रोते हुए को भी। क्योंकि आप तालियां कब बजाते हैं? जब आप मनोरंजित होते हैं, जब आपको आनंद आता है, जब वीरता का रस का जब डायलॉग जब बोलते हैं। जब आपने फिल्म देखी होगी धर्मवीर, तो आपको दिखा होगा कि जब प्रसाद जब डायलॉग बोलते हैं वीर रस का, तब भी तालियां बजती हैं। जब प्रेम रस में जब नायक और नायिका का जब प्रसंग चल रहा है श्रृंगार रस का, तब भी तालियां बजती हैं। तो ये हर रस में मनोरंजन है, हर रस में ये समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। इंटरटेनमेंट 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 कहने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा इंटरटेनमेंट क्या है और उसमें क्या मिसिंग है हमारी कहानी में, हमारी फिल्म में। हम नाटक वाले हर नाटक में इस चीज को देखते हैं। Sir, so which means that entertainment is just a comment. It means that I think what we can do is we can continue this discussion. But is the next team, has the next team come? They are waiting. Yes. They are just coming. They haven't yet come. No, बढ़िया। Continue, please. So last follow-up question and then we'll. Yeah. So which means so it's again a common question to all of you. I mean, all of you are welcome to answer. So it means that it is actually entertainment is not just entertainment. It is more than entertainment. Am I right? Entertainment is. It is inside. It is not outside. आनंद कहाँ है? आनंद बाहर ढूंढने से नहीं होगा। आपने बहुत बढ़िया घड़ी खरीद लिया, टाइम बिंग आपको मजा आएगा। बहुत बढ़िया ब्रांडेड शर्ट पहन लिया, टाइम बिंग आपको मजा आएगा। उसके बाद आप फिर दुखी हो जाओगे दूसरी चीज पाने के लिए। अगर आनंद अंदर है, अगर खुशी अंदर है, तो आप हमेशा आनंदित रहोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। आप बाहर की चीजों को पाने के चक्कर में हो। सिनेमा को जब ये समझ लिया जाए कि सिनेमा केवल व्यापार है, केवल पैसा कमाने का माध्यम है, तब तो फिर हो गया, फिर तो हो गया। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन और सिर्फ व्यापार नहीं है, सिनेमा इससे आगे कुछ है, ये जानना पड़ेगा। So I think all of these are really important points, and I mean, I wish we had more time to talk about this, but I think we can continue the discussion in the lounge. And I think today's discussion is just proof to the fact that cinema has no language, and we're so glad to have people from 3 different parts of the country come over here and present their movies. And thank you so much to all of you for joining us, and thank you to our guests for coming.